My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be practicing some data interpretation questions for XGMT examination. Start करते हैं session. And if you like the content and not already subscribed to the channel, then subscribe to the channel as well as press the bell icon. You can also download the content PDF from Telegram channel Mathological and then practice first and then watch the solutions or directly watch the solutions, whichever way you prefer. So the first question, A, B, C, D, E, F, G, H till X, Y, Z, these are the players who participated in a tournament. Everyone played with every other player exactly once. A win scores 2 points, a draw scores 1 point, and a loss scores 0 points. None of the matches ended in a draw. No two players scored the same score at the end of the tournament. By ranking list is published, which is in accordance with the alphabetical order. Then, which of the following would have happened? Okay. So there are total 26 players, A, B, C, D, E, F till X, Y, Z. 26 players and everyone played with every other player exactly once. यानी कि सारे के सारे प्लेयर्स में मैचेस हुए. कितने मैचेस हुए होंगे? 26 C2. हर एक प्लेयर ने 25 मैचेस खेले होंगे, तो 25 into 26 divided by 2. That will be number of matches, which will be 325 matches in total. Isn't it so? Additionally, it is saying that a win scores 2 points. So for a win, number of points given are 2. For a draw, 1 point is given, and for a loss, 0 points are awarded. No two players scored the same score at the end of the tournament. By ranking list is published, which is in accordance with the alphabetical order. Total 26 players है, सबका scores different है, सबका score different है. In this series, minimum score कितना हो सकता है? Minimum score will be when no match has been won by a team, so minimum score will be 0. Maximum score क्या हो सकता है? When all matches have been won by a team, so a team is playing total 25 matches, so all 25 matches are won. 25 into 2, that is 50 points. So minimum score is 0 points, maximum score is 50 points for 25 matches, all won. Okay. और क्वेश्चन ये कह रहा है कि नो टू प्लेयर्स स्कोर द सेम स्कोर, तो सबका स्कोर डिफरेंट है. एडिशनली कोई भी ड्रॉ नहीं हुआ है, तो अगर ड्रॉ नहीं हुआ है तो पॉइंट्स 2 के मल्टीपल में ही मिले होंगे, क्योंकि 1 पॉइंट मिलने का स्कोप ही नहीं है जब ड्रॉ नहीं हुआ. तो मिनिमम पॉइंट्स विल बी 0, और किसी टीम के पॉइंट्स हो सकते हैं 2 या 4 पॉइंट्स होंगे, या 6 होंगे, या 8 होंगे, या 10 होंगे, 12 होंगे, एंड सो ऑन. 0 से लेकर 50 तक कोई भी वैल्यू हो सकता है, और सारी टीम्स के लिए वैल्यूज डिफरेंट है. टोटल टीम्स है 26, और ये वैल्यूज कितनी होंगी हमारी 0 से लेके 50 तक? पॉसिबल वैल्यूज कितनी है? तो पॉसिबल वैल्यूज आर ऑल्सो इक्वल टू 26. भाई 50 क्या है? 25 into 2 और प्लस 0, यानी कि टोटल पॉसिबल वैल्यूज भी 26 है और नंबर ऑफ टीम्स भी 26 है. एंड एवरी टीम हैज डिफरेंट यूनिक स्कोर, डिफरेंट स्कोर है, यानी कि सारे के सारे ये जो स्कोर है ये हमारी टीम में बटे होंगे अकॉर्डिंगली. साथ में ये भी कह रहा है लास्ट में कि रैंकिंग लिस्ट में was in accordance with the alphabetical order, यानी कि A comes first, so A का रैंकिंग क्या होगा? फर्स्ट होगा. Isn't it so? B comes second, तो B का रैंकिंग क्या होगा? सेकंड होगा. C comes third, तो C का रैंकिंग क्या होगा? थर्ड होगा. और पॉइंट्स वैसे ही अलॉट होंगे. So that implies that points of A will be 50. तो भी तो फर्स्ट रैंक आएगा. Points of B will be 48. Points of C will be 46. Points of D will be 44, and so on. And at last points of Y will be कितने होंगे? Y के 2 points होंगे और Z के 0. This will be the score. Isn't it so? अब अगर A के 50 points आए हैं, so that implies that A has won all its matches. A has won all matches. फिर वो मैच चाहे B के अगेंस्ट हो, C के अगेंस्ट हो, D के अगेंस्ट हो, won all its matches. ठीक है. B has scored 48 points, यानी कि B has won total 24 matches and lost 1 match. अब B ने जो एक मैच लूज किया है, किसके अगेंस्ट लूज किया होगा? डेफिनेटली A के अगेंस्ट लूज किया होगा, बिकॉज A ने सारे के सारे मैचेस जीते हैं. तो B लॉस्ट अगेंस्ट A. दैट इज क्लियर. C scored 46 points, which implies 23 wins and 2 losses. तो C ने किसके अगेंस्ट मैच लूज किया होगा? मैच लूज किया होगा एक अगेंस्ट A एंड 1 मैच अगेंस्ट B. तो क्या पैटर्न देख पा रहे हो कि C लॉस्ट 1 मैच अगेंस्ट B एंड 1 मैच अगेंस्ट A.
सिमिलरली अब डी की बात करोगे, डी हैज लॉस्ट टोटल 3 मैचेस एंड दोस 3 मैचेस विल बी किसके अगेंस्ट होंगे, सी के, बी के और ए के। Isn't it so? तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि एम और एन के बारे में बात कर रहा है, एम एंड एन, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ एम विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ एन। और जैसा पैटर्न बन रहा है क्लियरली कि जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे, सो एनी सबसीक्वेंट प्लेयर वुड हैव लॉस्ट मैचेस फ्रॉम द प्लेयर दैट प्रेसीड्स हिम, isn't it so? From all the players that precede him, so n must have lost from m, ठीक है ना, n m से हारा होगा और m wins over n, so option A will be the answer, m wins over n, that is the definite case, isn't it so? क्या है, क्लियर है? और z लास्ट में सारे ही मैचेस हारा है, लॉस्ट ऑल मैचेस। क्या पैटर्न समझ में आता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी एंड डी collected 101 rupee coins together. Each one of them collected even number of coins numbering at least 10. कम से कम 10 coins तो कलेक्ट किए हैं और सबने even number of coins कलेक्ट किए हैं. No two of them collected same number of coins. So question is the maximum number of coins collected by any one of them cannot exceed what value? Maximum number of coins collected by any one of them. So A, B, C, D total coins are 100. और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइंस हमें आइडेंटिफाई करना है, क्या वैल्यू हो सकता है। सो इफ यू हैव टू मैक्सिमाइज वन वैल्यू तो बाकी सबको मिनिमाइज कर दो। अगर हमें एक वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है तो बाकी सबको मिनिमाइज करना पड़ेगा उसके लिए, isn't it so? एंड मिनिमम नंबर ऑफ कॉइंस कितने हो सकते हैं, 10। बट सबके कॉइंस क्या है, नो टू ऑफ देम कलेक्टेड सेम नंबर ऑफ कॉइंस, सो मिनिमम कॉइंस इज 10, कॉइंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10। मिनिमम 10 हो सकता है और क्योंकि इवन नंबर ऑफ कॉइंस कलेक्ट किए हैं सबने, तो 10 के बाद में नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 12 होगा, देन 14, 16, these values are possible. So if you have to let us say maximize coins for A, तो A को maximum coins देने हैं तो बाकी सबको minimum दे दो, तो B के coins कर दो 10, C के कर दो 12 and 14, तो 10, 12, 14 are the minimum possible number of coins with other 3 players और sum क्या आ जाएगा, 10 plus 12 plus 14 is 36, so remaining coins will be with A, so number of coins with A will be 100 minus 36 which is equal to 64, so maximum value will be 64, option A will be the answer. Isn't it so? Clear है? Next question. If A collected 54 coins, then difference in number of coins between the one who collected maximum number of coins and the one who collected the second highest number of coins must be at least क्या value? Minimum value क्या होगा of the difference between highest and second highest? So A collected 54 coins, total coins कितने हैं, 100 है, तो टोटल कॉइंस 100 है, आउट ऑफ 100 54 कॉइंस तो ए ने ही कलेक्ट कर लिया, रिमेनिंग कॉइंस कितने बचे, 46, रिमेनिंग कॉइंस आर 46, तो रिमेनिंग कॉइंस आर लेस देन नंबर ऑफ कॉइंस विद ए, तो डेफिनेटली ए हैज कलेक्टेड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइंस। एंड देन क्वेश्चन इज सेइंग डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ कॉइंस बिटवीन द वन हु कलेक्टेड मैक्सिमम एंड द वन हु कलेक्टेड सेकंड हाईएस्ट, यानी कि अब सेकंड हाईएस्ट हमें करना है, लेट अस से बी कलेक्टेड सेकंड हाईएस्ट, सेकंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइंस। सो इफ B को हमें मैक्सिमाइज करना है, B C D का सम तो हमें गिवन है, सम कांस्टेंट है, सम इज 46, सो इफ यू हैव टू मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कॉइंस विद B, देन वी विल हैव टू मिनिमाइज नंबर ऑफ कॉइंस विद C and D as minimum as possible. So number of coins with C and D we can say कि C के पास अगर 10 कॉइंस होंगे, D के पास 12 हो जाएंगे, मिनिमम करने हैं, और 10 plus 12 will be equal to 22, 22 हो जाएगा, टोटल इज 46 फॉर B, C and D, 22 कॉइंस आर विद C and D, तो रिमेनिंग कॉइंस B के साथ होंगे which will be equal to 24. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉइंस विद B और सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ कॉइंस कैन बी 24, उससे ज्यादा बड़ा तो हो नहीं सकता, 24 और हाइएस्ट है 54, तो डिफरेंस बिटवीन देम इज 30, मिनिमम 30 का डिफरेंस आएगा, 30 से ज्यादा हो सकता है डिफरेंस, कम नहीं हो सकता, बिकॉज 24 से ज्यादा कॉइंस नहीं दे सकते, तो मिनिमम डिफरेंस विल बी 30, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। क्या क्लियर है, क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो, ठीक है, सो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी 30। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if A collected 54 coins and B collected 2 more coins than twice the number of coins collected by C, then number of coins collected by B की वैल्यू क्या हो सकता है, तो A has collected 54, total is 100, so obviously number of coins with B, C and D
that is equal to 46. And additionally the question is saying that B has collected 2 more coins than twice the number of coins collected by C. So if C has collected, let us say, X coins, so B must have collected 2 more than twice the number of coins, यानी 2x plus 2. And D must have collected Y coins, let us say. So equation हमारा क्या बन जाएगा, 2x plus 2 plus x plus y is equal to 46. This is equal to 46, यानी कि 3x plus y is equal to 44. और कंडीशन क्या है, both x and y have to be greater than equal to 10. Both x and y have to be greater than equal to 10. ये तो मस्ट है, बिकॉज नंबर ऑफ कॉइंस हैव टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और इवन भी होना है. ठीक है, सो क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकता है, इफ यू टेक y इज इक्वल टू 10 तो 3x विल बी 34, बट 3x 34 हो नहीं सकता बिकॉज x पर इंटीजर सॉल्यूशन नहीं आएगा और सॉल्यूशन इंटीजर चाहिए, सो 10 तो पॉसिबल नहीं है. इफ यू टेक y इज इक्वल टू 12 3x विल बी 32, अगेन नॉट पॉसिबल. y इज इक्वल टू 14 3x विल बी 30, x विल बी 10. और अब इसके बाद में और बड़ी वैल्यू होगी तो x की वैल्यू छोटी आएगी और सॉल्यूशन हमारा 10 से छोटे नंबर ऑफ कॉइंस, तो नंबर ऑफ कॉइंस 10 से कम तो नहीं हो सकते. सो दिस इज द ओनली सॉल्यूशन पॉसिबल व्हेन x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 14. सो फॉर x इज इक्वल टू 10 number of coins with B will be 2 into 10 plus 2, which is 22. 22 is the only possible number of coins with B. Option D will be the answer. Is that clear? ठीक है. Next question. FEI for a country in a year is the ratio expressed as the percentage of its foreign equity inflow to its GDP. The following figure displays the FEI for select Asian countries for the years 1997 and 1998. तो हमें ग्राफ गिवन है, बार ग्राफ्स for India, China, Malaysia, South Korea and Thailand for years 1997 and 1998. And these values are FEI values. Foreign equity inflow values expressed in terms of percentage. तो FEI by GDP into 100 का वैल्यू बेसिकली हमें गिवन है. Percentage of FEI in comparison to GDP, that value has been given. So 1.71% is the value of FEI for India for the year 1997 or 0.72% is that value for the year 1998 for India. Okay, question is asking the country with the largest change in FEI in 1998 relative to 1997 का value, largest change in FEI. ठीक है, सो किस कंट्री के लिए होगा लार्जेस्ट चेंज इन FEI इन 1998 रिलेटेड टू इट्स FEI इन 1997. सो क्या आंसर होगा, so FEI is percentage value, isn't it so? So for India, FEI has changed from 1.71% to 0.72%. In 1997, the value was 1.71% and in 1992, the value is 0.72%. So there is a change of 0.99 in comparison to 1.7, which is more than 50%. तो more than 50% का change है, greater than 50% का change है, isn't it so? In terms of FEI value, क्या है क्लियर है? बाकी कंट्रीज के लिए चेंज उससे कम है डेफिनेटली, 5.96 से 4.8 आया. So there is change of roughly 1.2%. 1.2% का चेंज है जो कि कंपैरिजन में 20% हो जाएगा फॉर द वैल्यू इन 1997. तो बाकी सारी कंट्रीज के लिए दैट चेंज इज लेसर देन 50%. सो ऑप्शन ए इंडिया विल बी द आंसर. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Based on the data provided, it can be concluded that then options are given. तो ऑप्शन ए absolute value of foreign equity inflows FEI in 1998 was higher than that in 1997 for both Thailand and Korea. अब हमें जो वैल्यूज गिवन है तो परसेंटेज वैल्यूज गिवन है. FEI क्या है, परसेंटेज. FEI का परसेंटेज वैल्यू गिवन है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी. बट जीडीपी क्या है नहीं पता, नहीं पता है. तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ FEI तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता है और क्वेश्चन बात कर रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ FEI की, तो वी हैव नो आइडिया. तो ऑप्शन ए कैन नॉट बी कंक्लूडेड.
कि ज़्यादा होगा कम होगा, डिपेंड्स ऑन कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफईआई क्या है या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जीडीपी क्या है, बिकॉज जीडीपी पता है तो फिर एफईआई का वैल्यू तो निकल आएगा. ऑप्शन बी ऑल्सो सेइंग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफईआई अगेन कैन नॉट बी कंक्लूडेड. ठीक है, और ऑप्शन सी अगेन एब्सोल्यूट वैल्यू तो कैन नॉट बी कंक्लूडेड. वी कैन नॉट कंक्लूड एनी ऑफ ए बी और सी. एब्सोल्यूट वैल्यू पता ही नहीं लगा सकते जब तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो या कोई और कंपैरिजन वाला वैल्यू गिवन ना हो. तो ऑप्शन डी इज डेफिनेटली करेक्ट कि नन ऑफ देम कैन बी इन्फर्ड. विद द गिवन डेटा हम कुछ भी इन्फर नहीं कर सकते अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज गिवन. ओके, क्लियर है among the given options. Next question. It is known that China's GDP in 1998 was 7% higher than its value in 1997. तो अब हमें कंपैरिजन के लिए वैल्यूज गिवन है. China's GDP in 1998 was 7% higher than its value in 1997, while India's GDP grew by 2% during the same period. The GDP of South Korea, on the other hand, fell by 5%. So which of the following statements are true? First statement, foreign equity inflow to China was higher in 1998 than in 1997. Second statement उसका quite opposite है. तो फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक ही ट्रू होगा. और हमें पता है फॉर चाइना द जीडीपी इन 1998 वाज 7% हायर. तो अगर 1997 में जीडीपी इज 100 लेट अस से, तो जीडीपी विल बी 107 यूनिट्स इन 1998. और एफईआई विल बी 5.96% इन 1997. यानी कि एफईआई का वैल्यू क्या हो जाएगा? एफईआई ऑफ चाइना फॉर 1997 विल बी, अगर 100 का वैल्यू है तो 5.96. भाई इसी रेशियो में बढ़ेगा, प्रपोर्शन में बढ़ेगा, तो एब्सोल्यूट वैल्यू हम कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, और फिर हमारा 1998 में हो जाएगा 107 और 107 का 4.8%, विच विल बी अराउंड 5, रफली 5 के आसपास का वैल्यू होगा. रफली 5 के आसपास का वैल्यू होगा. सो 1998 में डेफिनेटली एफईआई इज लेस देन एफईआई इन 1997 फॉर चाइना. तो फॉरेन इक्विटी इनफ्लो टू चाइना वर लोअर इन 1998 देन इन 1997. सेकंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट और फर्स्ट तो इनकरेक्ट है. तो फर्स्ट यहां पे भी आ रहा है वो तो आंसर नहीं है, ए भी आंसर नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, बिटवीन बी एंड डी कोई एक आंसर होगा. ओके, अब बात करते हैं सेम चीज की इंडिया के लिए. इंडिया के लिए बात करते हैं. ओके, ठीक है, हालांकि इंडिया के लिए नहीं भी चेक करोगे तो भी चलेगा, बिकॉज अल्टीमेटली बिटवीन बी एंड डी. ऑब्जर्व करो तो सिर्फ और सिर्फ बी में थर्ड ऑप्शन आ रहा है, तो या तो इंडिया के लिए चेक कर लोगे तो आंसर मिल जाएगा, या फिर साउथ कोरिया के लिए चेक कर लोगे तो भी आंसर मिल जाएगा. किसी भी एक के लिए चेक करके हमें आंसर मिल जाने वाला है. ठीक है, सो इंडिया के लिए हमने चेक किया, फॉरेन इक्विटी इनफ्लो टू इंडिया वर हायर इन 1998 देन इन 1997. और इंडिया के लिए डेटा क्या गिवन है? इंडिया जीडीपी ग्रो बाय 2%, बस 2% से ग्रो किया है. तो अगर 100 वैल्यू था इंडिया के जीडीपी का, भाई 100 नहीं तो 100x होगा, पर बात समझ में आनी चाहिए कि अगर 100 वैल्यू था तो नाउ द जीडीपी विल बी 102 इन 1998. तो 100 का 1.71% विल बी रफली 1.71 एग्जैक्टली इनफैक्ट, और 102 का 0.72 विल बी रफली 0.72 ओनली. तो डिक्रीज किया है 1998 में, लोअर वैल्यू होगा, क्लियरली लोअर वैल्यू होगा, तो दिस इज इनकरेक्ट. और थर्ड इनकरेक्ट हो गया, तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी इज द आंसर. ठीक है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकंड एंड फिफ्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट. फिर भी एक बार चेक करने के लिए साउथ कोरिया के लिए देख लेते हैं. तो साउथ कोरिया का जीडीपी हैज फेल बाई 5%, यानी कि अगर 100 था तो 95 हो गया होगा, या 20 था तो 19 हो गया होगा, 20 से 19 हो गया होगा. ओके, और हमारा वैल्यू क्या कर रहा है? 100 से 95 वैसे ज्यादा कंपेरिजन वैल्यू है, 5% से डिक्रीज किया है. और 2.16% इज द एफईआई वैल्यू फॉर 1997. तो 2.16% ऑफ 100 will be 2.16 only. 2.16 only. और 2.5% 95 क्या होगा? That will be 95 by 40. Which will be roughly, this is 19 by 8, like 2 and 3 by 8, 2.37, which is greater than that value in 1997. So definitely fifth is correct. ओके, फिफ्थ स्टेटमेंट करेक्ट होगा. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. चाइना's foreign equity inflow in 1998 were 10 times that into India. So it can be concluded that चाइना का जीडीपी और इंडिया के जीडीपी का रिलेशनशिप क्या होगा? क्या हम ये इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं ड्रॉ कर सकते हैं? गिवन क्या है हमें? चाइना's foreign equity inflow in 1998 was 10 times that into India. ओके, 10 times that into India. So इंडिया का फॉरेन इक्विटी इनफ्लो क्या होगा 1998 में? That is 0.72% of India's GDP. So let us say इंडिया का जीडीपी आई मान लेते हैं. So 0.72% of I. This is FEI to India in that year 1998 में. और
FEI टू चाइना दैट ईयर क्या है, दैट इज 4.8% ऑफ जीडीपी ऑफ चाइना, 4.8% ऑफ जीडीपी ऑफ चाइना, लेटेस्ट से चाइना का जीडीपी सी है, और चाइनाज फॉरेन इक्विटी इनफ्लो इज 10 टाइम्स दैट ऑफ इंडिया. सो दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 10, दिस इज इक्वल टू 4.8% ऑफ चाइना का जीडीपी. तो 10 इंटू 0.72 यानी कि 7.2%, और 7.2 बाई 100 इंटू इंडिया का जीडीपी, दैट इज इक्वल टू 4.8 बाई 100 इंटू चाइना का जीडीपी. 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 24 से 2 टाइम्स जाएगा या 3 टाइम्स जाएगा. सो इंडिया का जीडीपी डिवाइडेड बाई चाइना का जीडीपी विल बी 2/3. सो इफ इंडिया का जीडीपी इज 2 यूनिट्स, चाइना का जीडीपी विल बी 3 यूनिट्स. ठीक है, यानी कि इंडिया की जीडीपी से 1 यूनिट ज्यादा है, विच इज 50% ज्यादा है. तो जीडीपी ऑफ चाइना विल बी 50% हायर देन दैट ऑफ इंडिया. किस ईयर का, 1998 का. अगर 1997 के लिए मेंशन होता तो नहीं कर सकते डिटरमाइन, बट ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर. चाइना जीडीपी इन 1998 was 50% हायर देन दैट ऑफ इंडिया. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज सेट that provides a table on information technology industry in India, and figures are in million US dollars. Figure values are in million US dollars. Okay, clear है. So question is, the total annual exports lay between 35 and 40% of the total annual business of the IT industry in which of the following years? Data में क्या given है, for 1994, 1995, 94, 95, 95, 96, 96, 97, 97, 98 and 98, 99. For software, हार्डवेयर, पेरिफेरल्स एंड देन ट्रेनिंग, मेंटेनेंस एंड नेटवर्किंग. और टोटल डेटा भी गिवन है. ओके, टोटल डेटा भी गिवन है एडिशनली. सो क्वेश्चन इज, टोटल एनुअल एक्सपोर्ट्स ले बिटवीन 35 एंड 40% ऑफ टोटल एनुअल बिजनेस ऑफ आईटी इंडस्ट्री किन ईयर्स में होगा ऐसा. टोटल एनुअल एक्सपोर्ट्स में हमारा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स आएगा, हार्डवेयर एक्सपोर्ट्स, पेरिफेरल एक्सपोर्ट्स. तो ऐड ऑल दीज 3 वैल्यूज, और टोटल वैल्यू क्या है, 2041 million US dollars is the total value in 94-95. तो एक्सपोर्ट्स का वैल्यू क्या है, 485 प्लस 177, तो दैट विल बी 585 प्लस 77 यानी कि 662 प्लस 668, विच इज डेफिनेटली बाई 2041 का 35% क्या होगा, रफली 700 प्लस होगा, 700 प्लस होगा, और 40% विल बी 800 के आसपास का वैल्यू. तो डेफिनेटली हमारा वैल्यू कम आ रहा है उससे. सो 1994-95 तो आंसर का पार्ट नहीं होगा, यानी कि ना तो ऑप्शन ए आंसर होगा, ना ही ऑप्शन डी आंसर होगा. ओके, 95-96 में एक्सपोर्ट इज 734 प्लस 35, तो 769 प्लस 6 775, 775 और 2886 इज टोटल वैल्यू, टोटल एनुअल एक्सपोर्ट. तो अगेन दिस वैल्यू इज लेस देन 30%, लेस देन 30%. तो 95-96 भी आंसर नहीं होगा, वो तो ऑप्शन में भी खैर गिवन नहीं है. 96-97 1083 प्लस 286, तो 1369 प्लस 14 1383, 3807 1383. क्या ये वैल्यू हो सकता है, दिस इज ग्रेटर देन 35%. 35% 4000 होता तो 35% इज 1400, बट उससे 200 कम है, तो डेफिनेटली दिस इज ग्रेटर देन 35% ऑफ 3807. अदरवाइज कैलकुलेट कर लोगे, 3807 का 30% क्या होगा, 10% इज 380.7, 380.7 इंटू 3, दैट विल बी 900, 240, तो 11 42.1 प्लस 5%, और 5% विल बी 190.35. डेफिनेटली दिस इज कमिंग आउट टू बी लेस देन 1350. तो ये वैल्यू तो हमारा मैच कर रहा है, तो 1996-97 विल बी पार्ट ऑफ द आंसर. ओके, वो तो वैसे भी समझ में आ रहा था. अगर हम सिर्फ और सिर्फ देखो, अभी तो हम सारी चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं, बट एग्जाम में करते तो क्या करते, एग्जाम में हमने चेक किया 94-95, ऑप्शन ए और डी एलिमिनेट हो गए. अब सी और बी दोनों में ही 96-97 आ रहा है, यानी कि हमें चेक करना था सिर्फ और सिर्फ बिटवीन 97-98 एंड 98-99, और कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं थी, किसी भी एक ईयर को चेक कर लेते, काम हो जाता हमारा. तो 97-98 में 1750 प्लस 201, 1951 प्लस 19, 1970 और 5031 हमारा टोटल वैल्यू है. तो अप्रोक्सीमेटली 38% के आसपास का वैल्यू आ रहा है. तो डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर. सो आंसर विल बी ऑप्शन बी, 96-97 एंड 97-98, और कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं थी कंसिडरिंग द ऑप्शंस जो हमें गिवन है.
Okay. Next question. The highest percentage growth in the total IT business related to the previous year was achieved in which of the following years? Highest percentage growth in total business. तो 2041 is the value in 94-95 और 2886 हो जा रहा है, रफली 40% का इंक्रीज है. 2886 हो जा रहा है 3807 यानी कि रफली 1000 यानी कि 35% इंक्रीज है रफली, लेकिन रफली 35% का इंक्रीज है, लेस देन दैट इन 94-95 से 95-96. और फिर हमारा वैल्यू 1200 से इंक्रीज कर रहा है. 1200 कितना होगा? रफली 1/3 से कम वैल्यू आ रहा है, यानी कि ये भी यहाँ पे 31-32% के आसपास का इंक्रीज होगा. फिर 5000 से 6000 यानी कि रफली 20% का इंक्रीज है. तो हाईएस्ट इंक्रीज आ रहा है हमारा बिटवीन 95-96 से 94-95 से 95-96, यानी कि आंसर विल बी 95-96 में इंक्रीज इज मैक्सिमम. दैट विल बी द आंसर, ऑप्शन ए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? Statement A, annual software exports steadily increased, but annual hardware exports steadily declined during 1994 to 1999. Software exports steadily increase हुए हैं, ऐसा हुआ है क्या? Software exports 485 से 734 increase, then again increase, then again increase, then again increase. So yes, that part is correct. First part is correct. Annual software exports have steadily increased, but annual hardware exports 177 से डिक्रीज करके 35 हुआ, फिर इंक्रीज करके 286 हो गया, फिर डिक्रीज करके 201, फिर 4, यानी कि इंक्रीज भी हुआ है, डिक्रीज भी हुआ है, बोथ हैव बीन देयर. सो सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एंड हेंस ऑप्शन ए विल नॉट बी द आंसर. सेकंड स्टेटमेंट, एनुअल पेरिफेरल एक्सपोर्ट्स स्टेडली इंक्रीज ड्यूरिंग 1994-1999. एनुअल पेरिफेरल एक्सपोर्ट्स 6 से हुआ है 6, फिर हुआ है 14, इंक्रीज हुआ है 19, फिर डिक्रीज हो गया, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हुआ है, इक्वल भी रहा है. सो अगेन सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट नहीं होगा. सो अब या तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा या फिर नॉट द स्टेटमेंट इज ट्रू. ऑप्शन सी इज सेइंग टोटल आईटी बिजनेस इन ट्रेनिंग इज हायर देन टोटल मेंटेनेंस का बिजनेस ड्यूरिंग द सेम पीरियड. ट्रेनिंग का बिजनेस क्या है? 107 प्लस 143 प्लस 185 प्लस 263 प्लस 302. तो कितना बिजनेस आ रहा है हमारा? 250 250 350 435 635 698 1000. तो ट्रेनिंग बिजनेस इज कमिंग आउट टू बी 1000. एंड मेंटेनेंस का बिजनेस क्या आ रहा है? 142 प्लस 172 314 414 496 696 717 953. सो दैट इज लेस देन, मेंटेनेंस वाला वैल्यू इज लेस देन ट्रेनिंग. सो यस, दैट इज करेक्ट. ऑप्शन सी फिर हमारा करेक्ट हो जाता है. दैट शुड बी करेक्ट. क्लियर है? ठीक है. अच्छा, यहाँ पे तो देखो वैल्यू सिंपल थी हमारी, बट अगर कभी ऐसा हो एग्जाम में कि वैल्यूज हमारी ज़्यादा टिपिकल हो, ठीक है, वैल्यूज ज़्यादा टिपिकल हो और हमें कंपेयर करना है सेम ऑप्शन सी जैसा कि ट्रेनिंग में क्या टोटल हमारा डिफरेंस आ रहा है, ट्रेनिंग और मेंटेनेंस के बीच में टोटल में डिफरेंस क्या आ रहा है, तो क्या कर सकते हो तुम हर एक ईयर के लिए इंडिविजुअली डिफरेंस ले लो. ठीक है, डिफरेंस विद साइन. फॉर एग्जाम्पल फॉर ईयर 1994-95 ट्रेनिंग का वैल्यू क्या है? 107, मेंटेनेंस का वैल्यू है 145 142, यानी कि डिफरेंस कितना है? डिफरेंस आ रहा है 35 का, और ट्रेनिंग का वैल्यू जो है दैट इज 35 लेस, तो -35 कर दिया. बस ये ध्यान रखना साइन हमेशा सबके लिए कंसिस्टेंट होगा. तो -35 किसके लिए? हम ट्रेनिंग के लिए बात कर रहे हैं. ट्रेनिंग का वैल्यूज 35 लेसर, तो आगे भी तुम्हें ट्रेनिंग वाले को ही कंपेयर करना है. ठीक है, अगेन लेसर आ रहा है, कितना लेस आ रहा है? 29, तो -29. फिर यहां पे वैल्यू क्या है? दिस वैल्यू इज +3, देन +42, और फाइनली दिस इज +66. तो क्लियरली दिस इज ट्रेनिंग का वैल्यू इज हायर देन मेंटेनेंस का वैल्यू, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी. क्लियर है? अब यहां पे सम करने की जरूरत नहीं, और क्योंकि सम नहीं कर रहे तो हमसे गलती होने का भी स्कोप नहीं है, क्योंकि यहां पे आप क्लियरली दिख रहा है हमको 66 + 42 + 3, दिस इज हायर देन 35 + 29, यानी कि पॉजिटिव में वैल्यू आएगा हमारा, यानी कि ट्रेनिंग का वैल्यू इज हायर देन मेंटेनेंस का वैल्यू. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज राडार बेस्ड ग्राफ और वेब स्पाइडर वेब ग्राफ. क्वेश्चन कह रहा है राडार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ न्यू कंपनीज रजिस्टर्ड इन थाउजेंड्स इन 4 कंट्रीज इन वेरियस ईयर्स. जर्मनी, फ्रांस, जापान एंड चाइना. क्वेश्चन नंबर 1 is in which year is the average number of companies registered in the maximum? Average number of companies registering the maximum. Average number of companies कब maximum होगा? जब की सम maximum होगा, क्योंकि number of countries तो सेम ही है. Isn't it so? Number of countries तो सेम ही है, 4 countries हर एक केस में, तो एवरेज तब maximum होगा जबकि सम maximum होगा. तो सम की वैल्यू निकाल लो.
हर एक ईयर के लिए सम की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ऑप्शन है 2008, 9, 10 और 11। तो इनके लिए हमें वैल्यूज फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन से ईयर के लिए वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है। फॉर द ईयर 2008 वैल्यू क्या आ रहा है, देखो वैल्यूज हमें गिवन है यहाँ पे। दिस वैल्यू इज 0, दिस इज 5, दिस इज 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40 फॉर ईच ईयर। ओके, सो 2008 का वैल्यू क्या आ रहा है, 40 फॉर चाइना। ठीक है, तो 40 वैल्यू आ रहा है। दिस इज 40 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 5, तो 40 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 5 यानी कि 80 इज द वैल्यू, 80,000 बेसिकली, क्योंकि थाउजेंड्स में ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, दीज वैल्यूज आर इन थाउजेंड्स, बट हमें कंपैरिजन के लिए उसकी जरूरत नहीं है। तो 80,000 वैल्यू आ रहा है एक्चुअल में, और एवरेज के लिए 20,000 आएगा, डिवाइड बाई 4 करोगे। ठीक है, बट अभी हम एब्सोलूट वैल्यू ही देखते हैं क्योंकि उससे कंपैरिजन हो जाएगा। 2009 में वैल्यू क्या रहा है, 40 प्लस 35 प्लस 30 प्लस 10, 40 प्लस 35 प्लस 30 प्लस 10। अब जब भी कैलकुलेशन करो तो हमेशा थोड़ा सा कॉशियस रहो, बिकॉज कभी क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम्हें 10 और 5 में गलती हो सकता है कि 10 दिख रहा है यहाँ पे, है वैल्यू 10, बट तुम 5 मार्क कर दो, तो ये थोड़ा सा कॉशियस रहना, ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंस का भी ध्यान दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितना है, दिस वैल्यू इज 30, ठीक है, सो दिस विल 25, 20 एंड देन 10। ठीक है, सो 40 प्लस 35 इज 75 प्लस 40 115। 2010 का वैल्यू क्या आ रहा है, चांसेस आर कि 2009 का वैल्यू भी मैक्सिमम होगा, ग्राफ में देखे तो ऐसा ही लग रहा है। और फिर ये वैल्यू आ रहा है हमारा 5, 15, 20, 25। तो 5 प्लस 15 इज 20 प्लस 20 प्लस 25, 65 इज द वैल्यू फॉर 2010। और 2011 का वैल्यू क्या आ रहा है, 35, 25, 20 एंड 20। दिस इज 100, so maximum is coming out to be 2009, year 2009, option B is the answer. Okay, ठीक है, नेक्स्ट ईयर करते हैं। What is the ratio of number of companies registered in Japan to that in China during 2008 to 2015? Ratio of number of companies registered in Japan to China from 2008 to 2015। तो सारा वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है फॉर जापान एज वेल एज चाइना। तो जापान के लिए वैल्यू क्या आएगा, लाइट ग्रीन कलर का ग्राफ है, फ्रॉम 2008 टू 2015 सारे ईयर्स के लिए। तो फॉर जापान द वैल्यू इज, दिस वैल्यू इज 15 प्लस 40 प्लस 15, तो 15 प्लस 40 प्लस 15 किसी ईयर का मिस नहीं होना है, देन 20, 25, 35 प्लस 40 प्लस 40। तो टोटल वैल्यू आ रहा है हमारा 15 प्लस 40, 55, 70, 90, 115, 150 प्लस 80, 230 वैल्यू आ रहा है 230। अब 230 ऐसा वैल्यू है कि इसके बेसिस पे वी कैन से, क्योंकि जापान और चाइना को हमें रेशियो निकालना है, तो डेफिनेटली ऑप्शन बी आंसर होगा, और कोई ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकता है अनलेस हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक किया हो। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक किया हो तो बातें लगे, अदरवाइज और कोई आंसर होना पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज 230 आ रहा है वैल्यू, तो अब रेशियो तुम लोगे 20 वाला केस पॉसिबल नहीं, बिकॉज 230 हमारा क्या है, सारी वैल्यूज इंटीजर में है, तो 20 तो कैसे आ सकता है, इजंट इट सो। हमारे जापान के लिए रिस्पेक्टिव वैल्यू 20 तो नहीं आ सकता, 24 नहीं आ सकता, 11 नहीं आ सकता, 23 इज ओनली पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, अब वेरीफाई कर लेते हैं, जापान का तो कर ही लिया हमने, चाइना के लिए भी वैल्यू देख लेते हैं, तो क्या वैल्यू आएगा फॉर चाइना। चाइना इज, यहाँ पे को मार्क कर दिया, दिस इज नॉट चाइना, क्या हो गया है, चाइना इज इन वॉयलेट कलर। सो 40 प्लस 35 प्लस दिस वैल्यू इज 20, 40 प्लस 35 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 5
प्लस लास्ट वैल्यू 35, सम हमारा आ रहा है 40 प्लस 35 75 प्लस 20 95 130 170 240. So 230 is to 240, 26 is to 24. That will be the answer, option B. Okay, clear है. Next question. Total number of companies registered in France is how much more or less than total number of companies registered in China? ठीक है, टोटल कंपनीज इन चाइना तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 240,000. फ्रांस का कैलकुलेट करना पड़ेगा वैल्यू, तो फ्रांस का वैल्यू क्या आएगा 20 प्लस 30 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 10 15 and 20. So total is 50, 75, 95, 125, 135, 150, 170. So 170,000 is the value for France. Question is total number of companies registered in France is how much more or less than the total number of companies registered in China. तो चाइना की कंपैरिजन में फ्रांस की कंपनीज कितना लेसर है, ठीक है, यानी कि बेस वैल्यू क्या होगा, बेस वैल्यू चाइना, तो चाइना से फ्रांस कंपनीज कितना लेसर है 70,000 और बेस इज 240,000, तो 70,000 बाई 240,000 यानी 7/24. परसेंटेज दिस विल रफली 30%. 30% 7.2, तो स्लाइटली लेसर आएगा उससे. ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा 29.16%. 29.16%, दैट विल बी द आंसर. क्लियर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A company purchases components A and B from Germany and USA respectively. A and B form 30% and 50% of the total production cost. Current profit is 20%. Due to change in the international scenario, cost of the German mark increased by 30%. German mark यानी कि currency of Germany, that increased by 30% and that of USA dollar increased by 22%. Due to market conditions, the selling price cannot be increased beyond 10%. Selling price को maximum हम 10% से increase कर सकते हैं. तो question is what is the maximum current gain possible? What is the maximum current gain value possible? तो कंपनी परचेजेस कंपोनेंट्स ए एंड बी फ्रॉम जर्मनी एंड यूएसए, और ए और बी 30% एंड 50% प्रोडक्शन कॉस्ट का शेयर रखते हैं. प्रोडक्शन कॉस्ट लेट अस अज्यूम कि इज 100. सो कंपोनेंट ए का कॉस्ट हो जाएगा 30% यानी 30 यूनिट्स, कंपोनेंट बी का कॉस्ट हो जाएगा 50% यानी 50 यूनिट्स. टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है 100 का, एंड करंट प्रॉफिट इज 20%. तो करंट प्रॉफिट 20% यानी करंट सेलिंग प्राइस क्या होगा 120. टोटल 120 होगा सेलिंग प्राइस. ड्यू टू चेंज इन द इंटरनेशनल सिनेरियो, कॉस्ट ऑफ जर्मन मार्क इंक्रीज बाय 30%. अगर कॉस्ट ऑफ जर्मन मार्क इंक्रीज किया 30%, तो कॉस्ट हमारा क्या होगा, जो कॉस्ट होगा कंपोनेंट ए का, बिकॉज कंपोनेंट ए वी आर परचेजिंग फ्रॉम जर्मनी, तो उसका कॉस्ट भी तो इंक्रीज करेगा, ठीक है. इंडियन रुपीज में भले ही वो कॉस्ट हमारा इंडियन रुपीज बोल रहा हूँ, जर्मन मार्क के टर्म्स में अगर इनिशियली हम देखें तो वो वैल्यू सेम ही रहेगा, बट कॉस्ट ऑफ जर्मन मार्क का मतलब क्या हुआ कि हम जब इंडियन रुपीज में परचेज करने की कोशिश कर रहे हैं तो कॉस्ट इंक्रीज कर गया 30% से. इजंट इट सो? तो समहाउ अगर हमारा जर्मन मार्क का कॉस्ट इंक्रीज किया 30% से, तो यही सेम इंक्रीज हमारा होगा कंपोनेंट ए के प्राइस में भी. सो नाउ द कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट ए विल बी 30% से इंक्रीज कर जाएगा, तो +9 39 कॉस्ट हो जाएगा. पहले 30 था, तो कॉस्ट ऑफ जर्मन मार्क इंक्रीज का 30% से, यानी कि कॉस्ट भी इंक्रीज करेगा कंपोनेंट ए का 30% से. सिमिलरली कंपोनेंट बी का कॉस्ट इंक्रीज करेगा 22% से, सेम एज इंक्रीज इन यूएसए डॉलर का इंक्रीज, तो 22% का इंक्रीज आएगा, यानी कि 50 का 22% कितना होगा 11. तो न्यू कॉस्ट विल बी 61. टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा 100 था, जिसमें से कि ए का कॉस्ट था 30, बी का था 50, रिमेनिंग क्या बचा हमारा, रिमेनिंग हो जाएगा 20, तभी तो 100 आएगा. 20 + 30 + 50 टोटल इज 100. तो रिमेनिंग का कॉस्ट अनचेंज रहेगा, क्योंकि उसके बारे में कोई भी डेटा गिवन नहीं, उसमें चेंज आ रहा है. तो टोटल अप कॉस्ट क्या हो गया एट प्रेजेंट सिनेरियो, क्या कॉस्ट हो गया 39 + 61 100 + 20 120. तो न्यू कॉस्ट इज 120 और सेलिंग प्राइस इनिशियली वाज 120. क्वेश्चन आस्किंग मैक्सिमम करंट गेन पॉसिबल क्या हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट पॉसिबल क्या हो सकता है, एंड इन द प्रेजेंट कंडीशन सेलिंग प्राइस कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड 10%. अगर हमें
मैक्सिमाइज करना है अपना प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करना पड़ेगा, बट मैक्सिमम कितना इंक्रीज कर सकते हैं, बाई 10% ओनली। सो अगर 10% इंक्रीज कर दोगे सेलिंग प्राइस को तो 120 + 12 132 विल बी न्यू सेलिंग प्राइस, 120 इज द न्यू कॉस्ट, 132 इज न्यू सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट हमारा हो गया 12 और बेस वैल्यू है 120, कॉस्ट है 120, 10% शुड बी द प्रॉफिट। तो 10% प्रॉफिट का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता, इससे कम तो हो सकता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। सो ऑप्शन ए इज द आंसर, 10% एट द मैक्स। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the USA dollar becomes cheap by 12% over its original cost, original cost से 12% cheaper हो जाता है, and cost of German mark increased by 20%, then what will be the gain? The selling price is not altered. Okay, so हमारा इनिशियल वैल्यू फिर से चलते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट 100 था, तो ए का कॉस्ट था 30, बी का कॉस्ट था 50 और रिमेनिंग कॉस्ट था 20 और सेलिंग प्राइस 120। क्वेश्चन इज सेइंग यूएसए डॉलर बिकम्स चीपर बाई 12% और बी हमारा यूएस डॉलर में ले रहे हैं और ए को ले रहे हैं जर्मन मार्क में। सो यूएसए डॉलर इज बिकम चीपर बाई 12%, 12% कॉस्ट कम हो जाएगा तो 50 - 6 दिस विल बी 44, कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट बी विल बी 44, कंपोनेंट ए का कॉस्ट क्या होगा, जर्मन मार्क का कॉस्ट इंक्रीज किया है 20% से, तो 30 + 20% ऑफ 30 यानी 6, 36 हो जाएगा। यही कि यहाँ पे इंक्रीज आया है 6 का +6 और यहाँ पे चेंज आया -6 का, तो नेट चेंज क्या है, नेट चेंज कॉस्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। तो कॉस्ट पहले भी 100 था, अभी भी 100 ही है, क्योंकि जर्मन मार्क का कॉस्ट इंक्रीज किया 6 से और यूएस डॉलर कॉस्ट डिक्रीज किया है 6 से, तो नेट चेंज इज 0। अगर नेट चेंज हमारा 0 है तो जितना प्रॉफिट पहले हो रहा होगा वही प्रॉफिट अब भी होगा, अभी भी प्रॉफिट 20% ही होगा। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्या ये क्लियर है? तो प्रॉफिट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, पहले भी 20% था, अभी भी 20% ही रहेगा। ओके, इज दैट क्लियर? सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम डेटा इंटरप्रिटेशन इन दिस सेट। आई बिलीव जो डिस्कस किया समझ में होगा। कहीं पे किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, एंड इफ यू लाइक द सेशन देन मेक श्योर टू हिट लाइक बटन एज वेल, और साथ में गिव अ फीडबैक इन द कमेंट्स। इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल देन make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon. You can also join Telegram channel Mathological and can message me on Telegram at ADITYAKT. You can also connect with me on WhatsApp by the same name Mathological. ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं इस सेशन में। बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।